डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी. Good evening, myself Dr. Naishal Rawal would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. In the last sessions, we had covered about the topics related to the Indian economic environment and global dynamics, which includes the content related to the World Trade Organizations and the various policies like agriculture policy, industrial policy, monetary policy, and the fiscal policy. In the last session, we had also covered about the topics related to the social responsibility of the business, CSR. It also includes the corporate social responsibility, and in the current sessions we will be going to study or cover the topics related to the consumer and the consumer rights. Okay? Once again, I would like to welcome you all, that is Unit 2, Consumerism and the Consumer Rights. Learning objective and the introductions related to the consumerism and the consumer rights. Whenever we talk about the consumer, they are considered as a part of the first choice. So let us begin with the introduction. आजकल देखा जाए तो कई सारी कंट्रीज़ ऐसी है कि जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ नेशनल इनकम या जीडीपी कहो या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहो. अब उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस भी इंक्रीज़ होता है. पहले आपको जो प्रोडक्ट मिलती है उसके कुछ समय के बाद द सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी, बस थोड़ा सा सिर्फ उसको मॉडिफाई किया जाता है और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस भी बढ़ रहा होता है, ठीक है, थोड़ी सी अलग प्रकार की प्रोडक्ट. से फॉर एग्जांपल एटीएम के बारे में अगर हम बात करें तो वी मे नॉट हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वी डोंट नो अबाउट द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, व्हाट टू डू. There is a lack of informations, educations in the developing country. So many economic problem related to the choice, making life of people more comfortable but also more confusing, and many questions are unanswered. Many consumers are being cheated and they don't know where to go and what to say. So many consumers in developing nations are seeing the new things of the Western countries or a Western world, right? Developing nations like India. So अगर हम ATM की बात करें तो जो लोग क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसको पता होगा ATM क्या है. अब जिसको पता नहीं है तो वो ट्रेडिशनल मेथड को ही फॉलो करेंगे. इफ़ दे रिक्वायर्ड कैश दे आर डेफिनेटली गोइंग टू द बैंक, राइट. So if you have the knowledge related to the ATM machines, so have that particular card, swipe it, enter your PIN number, you will get your cash over there. But what if people don't know about it, how to use it? Though the comments have been always there, instructions have been always written on the ATM or somewhere around the ATM machine, right? But what that people or a person don't know how to read that statement or the instructions. So here problem arise that information is not reaching or intentionally not given. Consumer is the solution of all this problem, consumerism. This unit will give you the basic idea for the consumerism and the rights of the consumer. हम जैसे बाज़ार में कोई चीज़ खरीदी करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स होते हैं, अवेलेबल रहते हैं. तो once again GDP of various countries and the most leading countries have been increases, also the product differentiations. The term consumerism came into existence in the year 1960. So what does consumerism is? It can be said as consumer force intended to defend consumer interest in the market by shifting the consumer pressure on the company in the market. Say for example, wrong branding,
fake goods, insecure goods, fabricated pricing, we don't know the actual price, उसके ऊपर कीमत चिपकाई गई है, 10 रुपए की प्रोडक्ट पे 15 चिपकाए गए हैं. Making groups and collusions, charging higher price from the consumers, misleading packing informations, false and misleading advertisement, faulty assurance, black marketing, wrongdoing in the measurement and the weightage measurement. 1 किलो लिखा होगा लेकिन 1 किलो पूरा नहीं होगा, 9.5, 9.6, 9.8 उस हिसाब से हो सकता है. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स हैपन इन द मार्केट. गलत इन्फॉर्मेशन पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है. कभी अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन गलत से होगी. तो आजकल टेक्नोलॉजी भी बड़ी है, साथ में उसी के साथ साथ चॉइसेस भी बड़ा है, प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं, बट द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू द कंज्यूमरिज्म. नाउ once again I am repeating it, consumerism can be said that forcing consumer intended to defend consumer interest in the market by shifting the consumer pressure on the companies in the market is called consumerism. Peter Drucker have focused more on the 4 main significant aspect of marketing field. That is, number 1, it assumes that buyers know their needs. It is also assumed that market or business know what buyer want. This was also assumed that business provide all suitable information and the goods and services. And the last one is, it is also assumed that provided goods and service satisfy the needs of consumer and the company promises also, but it is not always necessary. पीटर ड्रकर ने ये कंज्यूमरिज्म के 4 मेन एस्पेक्ट को डिफाइन किया था मार्केटिंग करने के लिए. एंड इन इकोनॉमिक्स आई ऑलवेज कीप सेइंग इन माय सेशन दैट assumptions आर योर लिमिटेशंस. assumptions आर ऑलवेज द अनरियलिस्टिक. ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सारे assumptions गलत है ये नहीं कहूँगा, बट अनरियलिस्टिक है, अज्यूम किया गया है. तो सबसे पहला अज्यूम क्या किया है कि बायर नो देयर नीड्स. whenever you go into the market, you know your needs, what you wanted to buy. It is also assumed that market or business know what buyers want. मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है या जिस कंपनी ने उसको बनाया है उस प्रोडक्ट को, उनको पता है बायर को क्या चाहिए. This was also assumed that business provide all the suitable information about various kind of goods and services available. And it is also assumed that we provide and the goods and services that satisfy the need of the consumer, and also company promises to do but not necessary. There is always differences between the word warranty and the guarantee. Okay, nowadays no one is giving the guarantee, they are using the word warranty. If you are changing that product within a year or some parts of that product, तो वारंटी उसमें काम नहीं करेगी. सो जब भी कोई प्रोडक्ट हम बाय करने के लिए जाते हैं मार्केट में और वो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो उसकी वारंटी पॉलिसी भी ठीक से रीड करनी चाहिए. क्या पॉलिसी है, वारंटी होती है नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के बाद उस प्रोडक्ट में यदि अगर कोई चेंज किया, छोटा सा भी चेंज, फिर वो वारंटी चला जाएगा. और कंपनी विल ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. दे विल नॉट गोइंग टू चेंज दैट प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. उनके लिए तो एक ही टारगेट रहेगा कि कैसे मैं अपना एक्सपेंडिचर कम करूं और हो सके उतने कम समय में उसको रिपेयर कर सकता हूं, तो रिपेयर करके कस्टमर को दे देता हूं, या तो वो पर्टिकुलर पार्ट्स को बदलने की कोशिश करता हूं. ठीक है, यहीं से मुझे एक एग्जांपल याद आता है. से फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी का ही मैं एग्जांपल लूँगा. दे आर सेलिंग दी सेकेंड हैंड कार. अब किसी कस्टमर से उन्होंने गाड़ी खरीदी कंपनी ने, और वो कंपनी दूसरे कस्टमर को बेचने की बात करता है उसी कार को. से फॉर एग्जांपल नया गाड़ी अगर 5 लाख में मिलता है, तो सेम मॉडल पुराना गाड़ी आपको 2 लाख रुपए में मिलेगा. और उसने कुछ कंडीशंस रखी होती है कि भाई मैंने
कुछ पार्ट्स को चेंज करके नए डाले हुए हैं, 1 साल की मैं इसमें वारंटी देता हूँ, राइट। किलोमीटर्स कितना एक्चुअल था और कितने किलोमीटर्स एक्चुअल दिखा रहे हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी अगर 50,000 किलोमीटर तक चली है, लेकिन वो कंपनी ने जब चेंज किया, कंपनी ने जब खरीदा और वो जब कस्टमर को बेचने जा रहा है तो 50 का शायद 40 भी कर दिया या 50 का शायद 50 ही रखा होगा। डिपेंड करता है वो कंपनी का पॉलिसी के ऊपर। पॉलिसी तो नहीं कहूँगा, बट कंपनी कितना ऑनेस्ट है अपने कंज्यूमर के प्रति, बट ये मार्केट में चल रहा है। तो कभी सो it is being assumed that what buyers want, company is knowing that, ठीक है। company also promises but it is not necessary. So following areas of consumer dissatisfactions and the remedial effects. The struggle and the dissatisfaction between consumers and seller in the market must be removed and both must behave rationally. भरोसे के ऊपर पूरी मार्केट चलती है, ठीक है। अगर कंपनी ने ये कहा है कि भाई 50,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी को मुझे बेचना है, 2.5 लाख रुपये उसका कीमत रखा है, तो ये कस्टमर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई कंपनी ने बोला तो कंपनी पे भरोसा करने का, और कंपनी को भी कस्टमर के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जिससे वो गाड़ी खरीदते हैं, फर्स्ट हैंड के लिए लेते भी है, तो वो उतने ही किलोमीटर की रहे। इन शॉर्ट रैशनल बिहेवियर होना चाहिए। सेलर शुड नॉट गो अहेड विद द रॉन्ग डिपिशंस ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज जस्ट टू सेल्स इन द मार्केट. The customer satisfaction is a very much important aspect in the market, whether the consumer is dealing with the profit making organizations or non-profit making organizations. Consumer must not face a situation where it creates a doubt over the goods and services of any kind. ठीक है। So wrong intentional pricing policies and his main point which consumerism defines and the targets should be removed, and buyers and sellers or the company should behave rationally. Nowadays we find the consumer in many modern developed or developing countries considers that the quality of life is an important factor, and how to maintain environment and keep it healthy for upcoming generation is also a point of consumerism. तो पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी एनवायरमेंटल को मेंटेन करने के लिए, बट नाउअडेज वी कैन फाइंड द मॉडर्न कल्चर इन आवर कंट्री and they try to maintain the environment and keep it healthy for upcoming generations. Consumerism and its protections. Idea of consumer supremacy and the choices are very much limited to what sellers and their marketing tactics shows to them, and they lead them in the way they went to. In India, if we talk about it, so consumers are facing many problems related to the goods and services, especially related to essential goods and services. So बहुत सारी ऐसी goods and services है, खास तौर से essential, very important, कि consumers are always facing some kind of a problem. That is almost after sales services. दुकान में या मॉल में वो प्रोडक्ट देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, शोरूम में वो प्रोडक्ट देखने के लिए ज़रूर जाते हैं, देख भी लेते, चॉइस कर लेते, जब उसको खरीदते हैं उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स इस कंज्यूमर फेस करता है। ठीक है, 6 महीने में अगर कोई डिफेक्ट निकलता है पीस के अंदर, फिर जब हम कंपनी को कॉल करते हैं तब देखने वाली बात होती है कि वो लोग कितना हमें प्रोटेक्ट करते हैं या तो कितना हमें फेवर में रहते हैं। सो इन इंडिया सच काइंड ऑफ सिनेरियो डज नॉट एग्जिस्ट मच. So consumers are facing many kind of problems related to the various kinds of goods and services. The differences in demand and supply has been increased. The level of artificial scarcity and the profiting, it hurts to the consumer. मार्केट में कभी डिमांड सप्लाई के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते, डिमांड ज़्यादा होती है तो सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, डिमांड होती है सप्लाई भी होना चाहिए, लेकिन डिमांड होती है बट अगर सप्लाई नहीं हुआ, जो कि सप्लाई उनके पास रहता भी है। मैंने एग्रीकल्चर पॉलिसी के दरमियान एक केस आपके सामने डिस्कशंस किया था, सो वोंट रिपीट दैट अगेन.
सो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी खड़ी करते, ये एक लेटेस्ट एग्जांपल दे दूँ तो कोविड-19 के टाइम पे व्हेन देयर वाज अनाउंसमेंट ऑफ द लॉकडाउन ऑफ 1 वीक और मे बी 15 और 21 डेज. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली मेंशन दैट कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को कोई इफेक्ट नहीं होने वाली है, वो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा. बट उसी दिन अगर उसके आसपास के दिनों में सुबह के या शाम के टाइम में बाज़ार में या मॉल में जाके देखेंगे हम, तो डेफिनेटली एक डर रहता था कि यदि अगर ये चीज़ ना मिली तो पीपल स्टार्टेड स्टोरिंग दैट प्रोडक्ट मोर देन दैट द रिक्वायरमेंट. ज़रूरत से ज़्यादा वो लोग खरीदने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है. सो इंडियन कंज्यूमर्स आर अनफॉर्चुनेट इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, विच इज़ अल्टीमेटली कॉस्टिंग देयर पॉकेट्स मोर कंपेयर टू अदर कंट्रीज बाइंग एट द सेम थिंग. खास तौर से mobile internet market was such field where Indian consumer have ended the paying with the high price, right? You can buy any product online. उसमें भी रिलायंस जियो आने के बाद उसके जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, तो रिलायंस जियो का जो प्लान था वो तो ऑलरेडी पहले से उसने प्राइस को कम करके रखा था. बहुत पहले जब वो लॉन्च किया गया था, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, तो शुरू के 8-9 महीने उसने फ्री में दिया था सबको इंटरनेट फैसिलिटी, 4G इंटरनेट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उसके जो कॉम्पिटिटर थे दे स्टार्टेड गेटिंग मर्ज विथ ईच अदर, लेकिन एक कंपनी ने उसको मना कर दिया कि भाई हम आपके मर्जिंग के साथ नहीं है. तो दूसरी दो कंपनी थी वो मर्ज हो चुकी थी. अभी टोटल 4 मेन प्लेयर है. ठीक है. और रिलायंस जियो का जो प्लान होगा रिचार्ज प्लान, उसी हिसाब से दूसरे 3 कंपनीज जो है वो प्लान रखेगी. सो हाई प्राइस जो हम पहले पे करते थे, तो इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट आने की वजह से या टेक्नोलॉजी को चेंज होने की वजह से अभी हमें इतना हाई प्राइस पे करने का ज़रूरत नहीं है. सो मैनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर वेरी मच कॉमन इन मैनी एडवांस कंट्रीज are rare or much less accessible in India. Less options available for Indian consumer. Many sites which gives even practice differentiations by the consumer originated from the which part of the world, so that many goods sold on the international sites cannot be seen or purchased on regional sites, especially made for a particular country. Say for example, Amazon.in or Amazon.com. द जस्टिस सिस्टम एंड द ग्रीवेंस कंपेंसेशंस. इंटरनेट के आने की वजह से हम इंटरनेट से शॉपिंग भी कर रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, उस पर शायद गलत इन्फॉर्मेशंस भी हो सकता है. रिव्यूज़ जो लिखते हैं ये भी हो सकता है कि कंपनी वालों ने खुद बोला हो अपने ही एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप लोग जाके रिव्यू लिखो दूसरे नाम से. ये भी हो सकता है जो प्रोडक्ट तुमने ऑनलाइन देखी हुई और जो मंगवाई है और जब घर पे आती है डिलीवर करने के लिए तब अलग प्रोडक्ट निकली है. ठीक है. तो ग्रीवेंसेस फाइल कर सकते हैं. जस्टिस सिस्टम है, पैसे वापस ही मिलने चाहिए. बट नाउअडेज कंपनी ट्राई टू से पीपल दैट कि भाई पैसे नहीं देंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो हम उसी प्रोडक्ट को आपको चेंज करके दे सकते हैं. फुल ऑफ टैक्टिक्स विच आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ द कंज्यूमर हु सीक जस्टिस. Day by day, graph of a consumer movements have always increases. That shows that still business has not reached the level of where they can satisfy the consumer. So Peter Drucker had said about the consumerism is product-oriented marketing. Consumerism will terminate it automatically or will be useless if a business honestly practices marketing concepts or customer-oriented marketing philosophy. अब हमें इसका ज़रूरत क्यों है? Why do we need consumerism? Protection of a consumer in the case of using goods and services which are dangerous while using, so the safety measures must be taken care of. Protection of consumer against the wrongdoings in the market. Ecological and the environmental effect of chemical, fertilizer or refinery complexes will have to seriously consider because they pollute the water, air, food and the human life will be in danger. एक एग्जाम्पल फिर से वही रिपीट करूंगा, मैंने पिछली क्लास में भी दिया था. 1984 का भोपाल गैस कांड become a very controversial because of carelessness of the company Union Carbide.
The cost cutting measures cost thousands of Indian citizens. Most of the people remain stranded without any compensations. Adequate protection of consumer public against the abuse of monopoly positions or restrictive trade practice, and protection delayed is protection denied. So this is why we need the consumerism. If we talk about the responsibility of the consumer, one has to be aware and ask a question about the goods and services purchasing or wishing to purchase. Social responsibility. Consumer must be very much careful about the use of goods and services, their usage pattern, advantages, disadvantages on the various groups of the society. This is very much important responsibility of every consumer. Environmental awareness, to be sensitive what their consumptions good does to the environment and not to waste scarce natural resource or pollute the earth. एयर कंडीशन की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करने का, बट नाउअडेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल इज चेंजिंग. दे आर गोइंग बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे आर लिविंग बेटर स्टैंडर्ड लाइफ. दे वांट एयर कंडीशन इन ऑल द रूम्स. ज़रूरत नहीं है पूरे घर में एसी करने की, बट नहीं, ड्राइंग रूम में एसी है, 3 बेडरूम है तो उसमें एसी रहेगा. राइट, दैट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. कैसे अफेक्ट करेगा वो मैंने अपने पिछले सेशंस में बताए थे. सॉलिडेरिटी की मैं बात करूँ तो टू एक्ट टुगेदर थ्रू द फॉर्मुलेशंस ऑफ कंज्यूमर ग्रुप विच हैव स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस टू प्रमोट द कंज्यूमर इंटरेस्ट. नाउ व्हाट डज यूनाइटेड नेशन हैड सेड? यूनिवर्सल रिकमेंडेशन फॉर कंज्यूमर protection. This cover the 7 particular areas. So like physical security, upgrade and protect of consumers' monetary interest, quality standard for the security, quality of the consumer goods, delivering facilities for essential consumer goods and services, awareness program for the consumer. कंज्यूमर को थोड़ा सा तो अपनी प्रोग्राम्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज वो जब बाय करने जाते तो उसके बारे में थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशंस ने ये यूनिवर्सल रेकमेंड किया था. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एडवाइजर इज वेर वेल डिस्क्राइब बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इन द 1983. एक रिपोर्ट था, उसमें उस रिपोर्ट में लिखा गया था, द ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिप्रेजेंट एन इनिशियल अटेम्प्ट टू क्रिएट एन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क within which the national consumer protection policy and the measures can be worked out. They are also being intended to assist the international community in its considerations of the question of consumer protection policy and further international cooperation in the field. Now, what are the rights of consumer? ठीक है, अब तक हमने बात किया कंज्यूमरिज्म के बारे में. व्हाई डू वी नीड कंज्यूमरिज्म? यूनाइटेड नेशंस ने कौन से प्रिंसिपल्स को बोला था, कैसे रिकमेंडेशंस किए थे, यूनिवर्सल रिकमेंडेशंस दिया था, अवेयरनेस के बारे में. नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर? सो सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ चॉइस, राइट टू बी लिसन्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन राइट्स के बारे में यदि अगर बात करें तो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट, a consumer must have all those informations regarding that particular product if they wish. Right of choice, मार्केट में जाते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ कंज्यूमर हैज़ टू डिसाइड कि कौन सी प्रोडक्ट उसको बाय करना है. A shop owner or a seller cannot force any particular person to buy their product. राइट्स टू बी लिसन्ड, प्रोडक्ट बाय करने के बाद यदि अगर कोई डिफेक्ट निकलता है और डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव रहता है कुछ, और वो कंज्यूमर वापस जाता है सेलर के पास, और सेलर को डेफिनेटली कंप्लेन जो है वो सुननी पड़ेगी. एंड राइट टू द कंज्यूमर एजुकेशंस, वॉट एवर एसेंशियल कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग देयर इन द मार्केट, सो कंज्यूमर को वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि किसके रिलेटेड प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट है और किस हिसाब से काम करता है. सो दीज आर द वेरियस राइट्स ऑफ द कंज्यूमर.
Now, what if a consumer is going to be cheated in the market? So there are some legal protection of consumers in India. So government of India had more than 30 laws to improve the lots of the consumer. Some of these are the Contract Act of 1882, Sale of Good Act 1930, Law of Torts, Essential Commodity Act 1955, Time Prevention of Food Adulteration Act 1954, the Standard and the Weight of Measures Act 1976, MRTP Act 1969, Agriculture Produce Act 1937 and Consumer Protection Act of 1986. सो किसी कंज्यूमर को यदि अगर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए या ऑफलाइन शॉपिंग से कोई ऐसा लग रहा है कि दे आर बीइंग चीटेड, सो लीगल हेल्प डेफिनेटली ले सकता है. अलग अलग प्रकार के एक्ट मौजूद है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा है कि भाई ये ऐसी प्रोडक्ट होगी बट ऐसी प्रोडक्ट मिलती नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, तो कंज्यूमर को उतना पता होना चाहिए कि लीगल प्रोटेक्शन कैसे लिया जाए. सो कुछ लॉज थे यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट नोट, सेल ऑफ गुड एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एसेंशियल कमोडिटी, फूड एडल्ट्रेशन, स्टैंडर्ड एंड वेट्स ऑफ मेजर एक्ट, MRTP एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट एंड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के बारे में पता होना चाहिए. सो हम कभी कंज्यूमर क्या करता है कि लीगल मैटर में बहुत कम लोग जाते, तो ये एक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत रहती है. सो फाइनली आई एम गोइंग टू एंड ओवर हियर. The session covers about the consumerism and the consumer rights under the topic related to the society, India and the global trends with the various kind of cases. Thank you very much. स्वाध्यायः